During the press conference, we were all surprised seeing Rishabh coming to the field. Were you surprised as well? And if you can talk about, how he basically went about with one leg. I think it was always our plan. There were quite a few efforts from the medical team, so yes, kudos to them. They could get Rishabh back onto the field. He could bat there for a while. Whatever he did, it's of course vital runs for the team he scored. And yes, he was in a lot of pain, and we have seen him doing a lot of amazing things, and this was just another amazing thing that he did for the team today. I believe. Shardul, obviously the fight back with you, Oshie and Rishabh, you people have done it since the Australia tour. But what went wrong after that? Maybe you got back into that rhythm, you were fighting really hard. But what went wrong when you took the field? Took the field with the ball? Oh, I think it was good effort. Whatever we got, whatever runs we got on the board, the ball was happening a lot in the morning today compared to yesterday, and I felt we batted well in the morning. Whatever runs we could get with the ball, I think in first 10 or 12 overs there were a lot of runs being scored, and after that we were trying to pull it back, and runs kept flowing. We know a lot of times when the sun is out here, the runs are being scored at good rate, and when the conditions are overcast, ball happens a lot, and then it just becomes difficult to score. Shardul, while bowling, with the new ball, it was slightly not up to not up to the expectations. If you could tell us how was it like as a wicket it shone right, and how was it like bowling? Was it quite difficult for the fast bowlers, or what was it? Like I said, with the new ball we could have been better, and after that, yes, we were trying to hold it back, like I said, but runs kept flowing. It wasn't difficult for bowlers, I would say. We could have had much more patience in terms of bowling the channel, which we did. So yeah, there are two sides of coin where there were few deliveries that we bowled were really well, and there were few deliveries which just went for boundaries. So I think we have to evaluate which kind of deliveries we need to stick by and just keep doing over and again tomorrow when we come back. Shanu, initially the trajectory was mostly leg side. Was it a constant ploy, or is it just things just didn't go their way? Bowling to the leg side of both Duckett and Crawley. I think bowlers were trying to find some swing in the hope that, or probably I would say, the way we saw there was some swing and seam in the morning. We hope that it will do for us also, but it didn't happen, and probably that should answer your question. Shardul, of course, in Lords we saw England having an injured player in Shoaib Bashir. Here we had Rishabh Pant with a broken fractured toe. In such scenarios, we have a concussion substitute in cricket, but in such scenarios where a player has suffered broken bone, do you think there should be a discussion around a change in law where you can have a substitution in case there's a broken bone for a player? What do you think as a senior? I think there's some discussion going on, if I'm not wrong. I was reading it in the news. Whether that should come in play or no, right now I couldn't say much. But if it happens, I would say it should happen after this cycle of WTC. It shouldn't happen in the middle, because already there are a few series that have been playing in world cricket, and it could be unfair when it comes to the points table and qualifying for the finals, looking at the whole WTC cycle. शार्दुल, क्या बता सकते हैं जब ऋषभ बैटिंग कर आ गए उसके बाद क्या क्या डिस्कशंस थे? मतलब जाहिर सी बात है बहुत सारे जुनून ने दिखाया, बट व्हाट वर द डिस्कशंस? उसके बाद क्या बातचीत हुई उनके इंजरी को लेकर के? अभी हमें ऑफिशियली ये भी नहीं पता है कि इट इज मतलब क्या सेकंड इनिंग्स में दोबारा बैटिंग करने आएंगे या नहीं, बट व्हाट वर द डिस्कशंस अराउंड, क्या आप बता सकते हैं? काफ़ी एक्साइटेड थे सारे देखने के लिए कि वो कैसे अप्रोच करते हैं अपनी इनिंग के लिए, और मेरे ख्याल से जो उन्होंने आज दिखाया है, जो जज्बा दिखाया टीम के लिए,
ये अनमैच्ड है। काफ़ी इंस्टेंसेस हम देखे प्रीवियसली भी कि जिन्होंने फ्रैक्चर में बैटिंग भी की है। एक ऐसा मौका आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम में ग्रैम स्मिथ को भी मिला था, तब उन्होंने बैटिंग की थी, उनका हाथ फ्रैक्चर था। तो ये जो मोमेंट्स है उसमें जो प्लेयर की ग्रिट है वही काम में आती है, और ऋषभ का जो पॉजिटिवनेस है और जो उसकी ग्रिट है, मेरे ख्याल से वही उसको दूर रखती है सारे पेन्स और जो भी दर्द होता है उसको, उससे उसकी पेन बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी हाई है, ये बोल सकता हूँ। अगर उसे मतलब दर्द हो रही है तो काफ़ी बड़ी इंजरी है, तब भी हम बोल सकते हैं कि उसको दर्द हो रही है। नहीं शार्दुल भाई, मैं जानना चाह रहा था कि उसके बाद जब वो आउट होकर आ गया ड्रेसिंग रूम में, तब क्या तब discussion तो हुआ? बॉलिंग के बारे में सोच रहे थे अच्छा। सभी लोग, क्योंकि वो आउट हो गए। फिर लास्ट विकेट थी, बुमराह और सिराज बैटिंग कर रहे थे, फिर तो बॉलिंग का डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। Last year. शार्दुल, लीड्स में आपको ज़्यादा गेंदबाजी नहीं मिली, उसके बाद 2 मैच अगले मिस करे, यहाँ पर भी आज इतनी गेंदबाजी नहीं मिली। एज अ बॉलर कितना डिफिकल्ट हो रहा है आपको अपना रिदम फाइंड करने में, क्या आप कर पा रहे हैं? और कुछ बात हुई बॉलिंग ग्रुप के अंदर आपकी या कैप्टन गिल से कि फर्स्ट मैच में इतना अंडर बॉल हुए आप, आज भी ऐसा मतलब प्रेफर्ड चॉइस आप नहीं रह रहे कि नए बॉल से हुए फर्स्ट चेंज जो बाद में लेके आया जा रहा है अटैक में, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। और क्या लग रहा है आपको, ऋषभ सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेंगे या सीरीज में और हिस्सा ले पाएंगे अभी? जी, अगर फर्स्ट मैच की बात की जाए तो उन्होंने यही कहा कि बॉलिंग देने का वैसे मौका नहीं बना। मैंने कहा ठीक है, यूजुअली कैप्टन कॉल्स लेता है, प्लेयर को तो ज़्यादा से होता नहीं है। और रही बात इस मैच की, तो मेरे ख्याल से जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ है अभी, हो सकता था और 2 ओवर मिल जाए, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है गेम में, 3 दिन बचे हुए, तो बॉलिंग तो मिलेगी और ज़्यादा, तो बस रिदम में कुछ रिदम मिलना हमेशा डिफिकल्ट ही रहता है, जब भी पता नहीं है कितनी बॉलिंग मिलेगी, कब मिलेगी। बट जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस यूज़ करके बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, बस यही कह सकता हूँ अभी तो। ऋषभ पंत वो उन मेडिकल टीम का कॉल है, ये मैं बोल सकता हूँ, और उसका पर्सनल कॉल भी है कि वो कितने कीन है बैटिंग करने के लिए। शार्दुल, आज सुबह आप टीम बस में आए तो ऑब्वियसली उसमें ऋषभ पंत तो नहीं थे। आप लोगों को पता था उस वक्त कि ऋषभ पंत बैटिंग करने आएंगे और क्या ऋषभ पंत का फ्रैक्चर है? जब सुबह बस में नहीं थे वो, तो हमें यही बताया गया था कि उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं और शायद कुछ इलाज करेंगे, जिसके चलते बैटिंग शायद कर पाएंगे वो, क्योंकि पहले तो नीचे पैर टच करके वॉक करके देखना था उनको, क्या वो चल पा रहे, ठीक से नहीं चल पा रहे। अगर वो हो पा रहे तब बैटिंग की बात आती है। और यहाँ पे ग्राउंड में भी पहुँचे, वार्म अप हुआ, तो तब तक तो वो आए नहीं थे, और फिर मैं बैटिंग के लिए चले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है, और मेरे ख्याल से फ्रैक्चर तो है ही, वो ऑलरेडी न्यूज़ इज आउट, तो है ही वो तो फ्रैक्चर, और डबल तो नहीं हो सकता है। शार्दुल, तू बॅटिंग पण केलीस, बॉलिंग पण केलीस, विकेटवरती बराच वेळ घालवलास. तिसऱ्या दिवशी चांगलं कमबॅक करायला इंडियन टीमला काय करायला? माझ्या मते जसं मी मगाशी म्हटलं, जे चांगले बॉल्स टाकले आज आम्ही, ते इव्हॅल्युएट करून उद्या तेच बॉल वारंवार टाकायला हवेत. आणि सर्व ॲज अ बॉलिंग युनिट जर आम्ही ते अचीव करू शकलो, 4ही फास्ट बॉलर्स आणि स्पिन अटॅक पण, स्पिनर्सचे त्यांचे काय आयडियाज असतील आणि त्यांचे जे चांगले बॉल असतील ते आम्ही रिपीट करून त्याच टप्प्यावर बॉलिंग करू शकलो, तर माझ्या मते रिझल्ट चांगला मिळेल आम्हाला आणि एक चांगला कमबॅक होऊ शकतो उद्या. ऑप्टिमिझम इज इम्पॉर्टंट, आय वुड से, ॲट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Thank you. Thank you.